सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ जोन। और आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सो जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और फाइनली हम सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यूज फ्रॉम सीबीएसई सैम्पल पेपर 21-22। इसमें स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही इंक्लूडेड है। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। So for this, let's consider a circle and let O be the center of the circle. Let P and Q be 2 points on the circle and let's join OP and OQ. So now you can see that the circle is divided into two parts. So the smaller part is known as the minor sector and the bigger part is known as the major sector. So now join PQ and remove OP and OQ. So now you can see that the circle is again divided into two parts. So the smaller part is known as the minor segment and the bigger part is known as the major segment. So now let's just have a look at some important formulas. So let R be the radius of the circle and theta be the angle subtended by the arc PQ at center O. So now हमारे पास कुछ formulas हैं इसके related. So जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो हमारा एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है एरिया ऑफ सर्कल से, बस यहाँ पर एक थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई हो गया है। सिमिलरली हमारे पास है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विच कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फ्रॉम द एरिया ऑफ द सर्कल। फिर उसके बाद है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो कि बराबर है 2 पाई आर के, और फिर है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू विच इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. So we have some more formulas. So the first is the area of minor segment. So you can easily see that area of the minor segment is equal to area of minor sector minus the area of triangle POQ. Similarly, area of the major sector is equal to the area of circle minus the area of the minor segment. So now let's solve some MCQs from CBSE sample paper. So the very first question says that we have a circle of diameter 42 centimeters if an arc subtends an angle of 60 degree at the center where pi is equal to 22 by 7, then find the length of the arc. So first of all, let's draw the figure, so which will be something like this. So we have a circle and a center, so it's something like this, and the central angle is 60 degree. और जो हमारे पास डायमीटर है वो बराबर है 42 सेंटीमीटर्स के। सो हमारा रेडियस हो जाएगा d/2 which is equal to 21 centimeters. So now we know the formula for the length of the arc which is equal to theta by 360 into 2 pi r. So we'll just simply substitute the values in the formula. So theta is 60 by 360 into 2 into 22 by 7 into 21. So this is equal to 3 and this cancel out to be 6, और ये हमारा हो गया, दोनों कैंसिल कर गए 6 को, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर बचा है वो है 22 centimeters. So the correct answer is option C, 22 centimeters. So इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर निकालना है एक सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर का. So सबसे पहले हम एक प्रोट्रैक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. So it is basically a semicircle. Okay, so its radius is r and this is a semicircle, therefore
the circumference is equal to 2 pi r divided by 2, which is equal to pi r. So this is the length of this part. Okay, so total perimeter is equal to this length plus this length. So it will be equal to pi r plus r plus r, which is equal to pi r plus 2r. So this is our answer, which is option D. So this question says, if the circumference of a circle increases from 2 pi to 4 pi, then its area dash the original area. So basically ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो इनिशियल सर्कमफ्रेंस था वो था 2 पाई, और फिर हमने उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ा के कर दिया 4 पाई। तो ये पूछ रहे हैं कि जो छोटे वाले सर्कल का जो एरिया है और जो बड़े वाले जो सर्कल का एरिया है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो छोटा सर्कल है हमारे पास उसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, और जो बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। सो वी नो दैट कि जो हमारा लेटेस्ट से जो सर्कमफ्रेंस है वो बराबर आ जाएगा 2 पाई आर, जो कि गिवन है हमें 2 पाई के। और सेम केस यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा बड़े सर्कल के लिए, 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 पाई। सो हम यहाँ से अब r की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 1, और यहाँ से हमारा जो r आ जाएगा वो हो जाएगा 2. So you can set up relationship between small r and capital R. So capital R is equal to 2 times the small r. So you have to find the area now. So पहले वाले का एरिया लेटेस्ट से हमारे पास है a is equal to pi r स्क्वायर, और जो हमारा जो नया वाला एरिया है लेटेस्ट से a डैश is equal to pi कैपिटल आर स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया पाई इंटू 2r स्क्वायर जो हमने वैल्यू पहले कैलकुलेट करी थी, और ये हमारा हो गया पाई इंटू 4r स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा a डैश है वो बराबर आ चुका है 4 टाइम्स पाई r स्क्वायर के। सो ये वाला जो पाई r स्क्वायर है उसकी जगह हम a को पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू a डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स a। सो यही वो पूछ रहे हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, 4 टाइम्स। सो दिस क्वेश्चन बेसिकली सेज कि हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस और जो रेडियस का डिफरेंस है ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है रेडियस, तो हमारे पास आएगा 37। सो हमें निकालना है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो आप देख सकते हैं हमें 2 पाई दोनों की वैल्यू पता है, बट यहाँ पे हमें r की वैल्यू नहीं पता है। सो हम r की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में से सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जो आएगा हमारे पास 22/7 इंटू r माइनस r इज इक्वल टू 37। सो अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 44/7 r माइनस r इज इक्वल टू 37। सो अब आप लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास आएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 44r माइनस 7r इज इक्वल टू 37। सो ये हमारा अब हो जाएगा 37r डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 37। सो अब यहाँ से आप r की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा r का जो वैल्यू है वो आ जाएगा
r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। सो जस्ट आप ये r की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7। सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 44 centimeter. So this question says that the area of a sector of a circle is 1/6 to the area of the circle, then find the degree measure of its minor arc. तो सबसे पहले हम इसके लिए एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर। Let this be the center of the circle और ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर। और हमें नहीं पता है कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है वो कितना सबटेंड कर रहा है। सो हम इसको मान ले रहे हैं कि ये थीटा है। सो जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा बराबर आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला जो एरिया है वो है 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सो हम इन दोनों को अब कंपेयर कर देंगे बस। तो हमारे पास बनेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 इंटू एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 360/6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 60 degrees. So this question says कि हमारे पास एक व्हील है जो रोटेट कर रही है एक रोड के ऊपर जिसकी लेंथ है 176 मीटर्स और ये जो व्हील है हमारे पास इसका जो रेडियस है वो है 0.7 मीटर। तो हमें निकालने हैं कि ये व्हील कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लेगी इस टोटल सड़क को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जो व्हील है वो हमारी एक सर्कल की फॉर्म में है और ये एक रेवोल्यूशन में एरिया जो कवर करेगी वो होगा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का। सो विच इज बेसिकली आवर सर्कमफ्रेंस। सो इन 1 revolution it covers 2 pi r meters. So it will be equal to 2 into 22/7 into 0.7, 0.1 and this is equal to 4.4 meters. So हमें पता लग चुका है कि हमारा एक रेवोल्यूशन में जो व्हील है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो है 4.4 मीटर्स और हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो है 176 मीटर। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए हम जस्ट जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 176 डिवाइडेड बाय 4.4। तो सबसे पहले हम इसे 11 से कैंसिल कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.4 and this will be equal to 1/6. So again this can be written as 160/4 which is equal to 40. So the correct answer to this question is option D, 40. So in this question we have to find the area of the shaded portion. So यहाँ पर हम कोई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वगैरह कुछ नहीं निकालेंगे, बस एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। सो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो अब जस्ट हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन के जो पार्ट्स हैं उसी को रीलोकेशन कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो अब एक रेक्टेंगल का फॉर्म ले चुका है जो हाफ है एरिया ऑफ द स्क्वायर के।
सो इसके लिए बस आपको करना क्या है कि आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है, विच इज इक्वल टू 14 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 196, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से. सो 196 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 98 centimeter square. So the correct option to this question is option C. So this question basically says कि हमारे पास जो ओलंपिक का जो लोगो होता है वहां पर आप देख सकते हैं कि जो 5 सर्कल्स होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं. तो वो जो ओवरलैपिंग है उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है. इन्होंने बता दिया हमें कि जो सारे सर्कल्स है उनका जो रेडियस है वो है 1, और जो लाइन ए बी है बेसिकली जो लाइन ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, उसकी भी लेंथ है 1. सो इसको हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं. सो ये कुछ ऐसा दिखेगा. मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे बना दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ आए. सो ये कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग आ रही है, और ये वाला जो लेंथ है ये है 1, और इसका जो रेडियस है वो भी है 1. सो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है वो बेसिकली कुछ इस तरह का हो रहा है, और ये जो नीचे का एरिया है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, और ये वाला जो ऊपर का एरिया है वो भी सेम ही है. तो हम सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे. उसके लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो निकालना पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं कि जो बीच में जो ट्राइंगल बन रहा था हमारे पास उसकी तीनों साइड्स बराबर है 1, 1 और 1. सो दैट्स व्हाई इट इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी वजह से इसके जो सारे एंगल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 60 डिग्री. तो हमारे पास जो सेंट्रल एंगल जो है इसका वो आ चुका है 60 डिग्री. सो इसका एरिया ऑफ माइनस सेक्टर हो जाएगा हमारे पास 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसमें से सेगमेंट का एरिया निकालते हैं जब, तो उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देते हैं. क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/4 ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे जो ए है वो है हमारा साइड ऑफ द ट्राइंगल. सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 6, आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 क्योंकि आर है हमारा 1. सो दिस विल बी इक्वल टू π/6 माइनस, और यहाँ पे जो a है इसकी भी वैल्यू क्या है 1 है. सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा √3/4. तो ये जो एरिया है वो सिर्फ एक छोटे से सेक्शन का है, ये वाला. बट हमारे पास टोटल ऐसे कितने एरियाज हैं आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 ओवरलैपिंग्स हैं कुछ इस तरह की, और यहाँ पर वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो अभी हमने सिर्फ एक का ही एरिया निकाला है. तो हमारे पास टोटल है ये 4 ओवरलैपिंग्स हैं, और हर एक में 2-2 पार्ट हैं. तो हमारे पास जो टोटल एरिया जो आएगा वो हो जाएगा 8 टाइम्स दिस एरिया. सो दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू π/6 माइनस √3/4. So the correct option is option D. So this question basically says that we have a circle with circumference 100 centimeter, और उसके अंदर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी जो सारी वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर हैं. तो सबसे पहले हम इसको एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा. सो हमें निकालना है ये जो साइड है ऑफ द स्क्वायर. सो लेट अस से दिस इज इक्वल टू a. सो जो इसका जो डायगोनल होगा वो हमेशा पास करेगा इसके सेंटर से. सो बेसिकली ये जो हमारा डायगोनल है वो हो गया डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो डायमीटर निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रेडियस. सो रेडियस निकालने के लिए हम यूज करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, विच इज दैट द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 100. सो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 100/π. सो जो 2r होता है हमारा वो होता है डायमीटर. सो जो हमारा डायमीटर वो आ चुका है 100/π. सो अगर आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करें, सो स्क्वायर में ये दोनों ही साइड सेम होती हैं, और हमने माना है कि जो एंगल है वो जो साइड है वो है a,
और ये एंगल होता है राइट एंगल, और ये था हमारा डी। सो डी हमें पता है और बाकी दोनों साइड्स भी हमें पता है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो वहां से हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो डी हमारा कितना था, तो वो था हमारा 100 बाय पाई स्क्वायर, और यहां से हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली निकल आएगी बाय जस्ट टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास ये वाली जो चीज है वो बन जाएगी 100 बाय पाई इज इक्वल टू √2 टाइम्स a. So this will be equal to a is equal to 100 by √2 pi. So this is our answer, which is option D. So इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then stay healthy and stay safe.